Hello, dear students. Very good morning, all of you. Good morning, everyone. Guys, welcome to VSmart Academy, and I'm here to cater the exam-oriented course for CA Foundation. And yes, guys, CA Foundation pay, as you all know, this course has been facilitated to us by our Honorable ICI. We at VSmart Academy teach at all the levels: CA Foundation, CA Inter, and CA Final. CA Foundation क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है, supposedly आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम देख चुके हैं, मैं ऐसा समझता हूं. लेट मी ब्रीफ यू अबाउट द कोर्स ऑफ सीए फाउंडेशन वन मोर टाइम. देयर आर 4 सब्जेक्ट्स: अकाउंट्स, द डेडली लॉ, okay, the killer mathematics, and economics and BCK. The team of VSmart, okay, this is the team of VSmart, and we will make sure that we, with the help of this exam oriented class, will make sure that you make through CA Foundation and reach CA Inter. Let me introduce you to all the faculty members at VSmart. Sir Aman Khedia will take care of mathematics. He makes sure that the concepts are deeply rooted in you. Followed by accounts by Abhijit Sen Gupta sir. Followed by the legal expert Sir Rahul Thakwani, and I will take care of your economics and business and commercial knowledge. So guys, let's discuss this. Since this is an exam oriented batch, and you know what problems do student face. Economics specifically एक ऐसा subject है जिसको इन चारों subjects में relatively easy माना जाता है. But then when it is relatively easy, it has some of its own importance in a way. I'll let you know in some time. Guys, let me introduce myself to you once again. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gahukar. I'll take care of the subject Business Economics and Business and Commercial Knowledge. I've been awarded PhD in e-commerce. I've been teaching since 2011, and there are lots of things which we should not discuss. You just kindly read it. Guys, why should we study economics? There are some perspectives. हमने इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो हमने इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है, ठीक है. अगर हम लोग नॉलेज ओरिएंटेशन की बात करें तो वी सीए फाउंडेशन लेवल पे हम लोग वी विल बी द पिलर्स ऑफ नेशन बिल्डिंग, ऐसा प्रियम्बल में लिखा है आईसीआई के. सो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज in nation building. So you are considered as an analyst, you are considered as an economist. That is why you should study economics. Just because exam is around the corner, the more important question is why should you join economics? ये जो मैं आपको कुछ मार्कशीट्स दिखाने वाला हूं, okay, these are success marksheets, but इसमें economics कैसे रोल प्ले करता है ये मैंने आपको बताना है. So guys, for that very reason, okay, Bhavna Bora, one of our very good students, she had scored 204 marks. Ab having scored 204 marks, let me show you the mark sheet in detail. So guys, अगर आप देखेंगे तो she has scored 204 marks और बहुत importance रहा है इन 61 marks का 204 score करने में. So अगर आप देखोगे half of the subject she has barely passed, and she had made sure that economics में इतने ज्यादा मार्क्स कवर अप हो जाए कि 200 एग्रीगेट का इश्यू सॉल्व हो जाए. सो गाइस, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट की कि हम लोग इसमें मैक्स टू मैक्स स्कोर करें ताकि एग्रीगेट का इश्यू सॉल्व हो. मैं ये नहीं कहता आप दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, बट रिलेटिवली इट इज इजियर एंड इंपॉर्टेंट टू स्कोर गुड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स. सर, एक मार्कशीट से क्या होता है, और मार्कशीट दिखाइए हमें. Guys, Mr. Vinay Pujari, he is from Sangli. I've met him. और इनका Instagram में मैंने इंटरव्यू भी अपलोड किया है. You can check out. 213 is his score, जिसमें से majority marks he has scored in business economics and business and commercial knowledge. You can check out for yourself. 69 is his score. 49, 52, 43. In the rest of the 3 subjects, he has barely managed to pass. He has scored most of his marks in this subject. अगर ये भी 50 होते तो शायद ये जो आपको रिजल्ट में पास नजर आ रहा है, शायद it would have not been the visibility. Any which ways, we move ahead. Miss Pranati Jain, she is from Rewa MP, one of our students, scored 209 marks. थोड़ा सा स्क्रीनशॉट अच्छा नहीं आया इसका, but then
अकाउंट्स में शी स्कोर्ड 60, 40 इन लॉ, 40 इन मैथ्स एंड 69 इन इकोनॉमिक्स. अगेन अगर अगर ये 69 नहीं होते तो 209 का टोटल नहीं बनता. सो गाइस, this is the very reason why you should join economics class, why it is important to score huge in economics. Just because you have studied economics in standard 12th does not mean success is guaranteed with that knowledge in CA at CA foundation level, because there's not only economics, there's also 40 mark subject business and commercial knowledge. Most of the students 12th के knowledge को granted लेके इकोनॉमिक्स का एग्जाम अटेंड करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स का नॉलेज सिर्फ 60 मार्क्स का है. ये भूल जाता है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज इज फॉर 40 मार्क्स, जो पूरा ही नॉलेज ओरिएंटेड है. इसमें समहाउ लॉजिक्स काम नहीं करेंगे आपके. आपको जो चीज पता होनी चाहिए वो चीज आपको पढ़ने से ही आएगी. एंड आई विल मेक श्योर कि आपका बीसीके भी उतना ही स्ट्रांग बने जितना आप एंडो करते हो. आप जितना इंपॉर्टेंस देते हो इकोनॉमिक्स को, उतना ही 40% का इंपॉर्टेंस हमें बीसीके को भी देना है. एनी विच वेज, व्हाट डज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डू? आप लोग इस सिलेबस में है. कैन यू हेल्प मी? एनीवन? व्हाट डज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डू? व्हाट डू वी डू? रसिका, अभिषेक? Audit, correct. Audit, taxation, and anything else? Any other domain that we have? Neha? अगर हम बात करें चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो वी आर एक्सपेक्टेड टू बी गुड एट अकाउंट्स. अकाउंट्स और ऑडिट ये तो हमारे मेन स्टे है, ये तो हमारा मेन जॉब है. बट गाइस, वी आर एक्सपेक्टेड टू बी गुड एट अकाउंट्स, good at audit, expert at taxation, perfect at financial management, very good with costing, very good with strategic management, very good with enterprise information systems, extremely good with respect to all the strategies that can have for a business. We are expected to be good at everything because we, as a chartered accountant, are a total business solution. A chartered accountant is a total business solution. और ये टोटल बिजनेस सोल्यूशन बनने के लिए एक बहुत ही इंटीग्रेटेड लेवल का नॉलेज होना चाहिए, जो आपको 3 लेवल्स पे इंपार्ट की जाती है. एंड दोस 3 लेवल्स आर सीए फाउंडेशन, जो हम लोग अभी रिवीजन कोर्स करने वाले हैं, फॉलोड बाय सीए इंटर एंड फाइनल. Paper 4 Business Economics consists of 60 marks, as I've told you. Again, do not bank only on economics. सिर्फ 60 marks का सिलेबस अच्छे से पढ़ के जाओगे तो मैक्सिमम 55, 57, 58, 59, 60 मिल जाएंगे. Students, I've been teaching this subject for 5 years now. स्टूडेंट बीसीक्यू को छोड़ के चले जाते हैं फॉर नो रीजन, जस्ट बिकॉज दे थिंक इकोनॉमिक्स में खींच लेंगे. लेकिन 60 में से कितने ही मिल जाएंगे आपको? 40 मार्क्स का सब्जेक्ट है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज. सो गाइस, आपको हमारी क्लास में जो स्टडी मटेरियल मिलेगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक मॉड्यूल मिलेगा आपको, एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का एक स्टडी मटेरियल मिलेगा. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, दीज 2 बुक्स विल बी सफिशिएंट इनफ टू गेट मोर देन गुड मार्क्स at economics and BCK. So guys, let's discuss the curriculum. Business economics mein there are 5 chapters. Again, do not take your 12th knowledge for granted and do not assume that whatever you studied in 12th us knowledge ki help se aap ye paper solve kar payenge. I'm so sorry to disappoint you. That's not gonna happen. So guys, when you talk about the chapters, nature and scope of business economics, 10 to 12 marks. Chapter 2, theory of demand and supply, there are 3 units in this, 12 to 16 marks. Then there are theory of production and cost, 10 to 12 marks, followed by meaning and types of market, 12 to 14 marks. Business cycles, 10 to 12 marks. That's the general weightage of the chapters in a curriculum. I would be more than happy, I would very appreciate it if you happen to write the weightage of the chapters. Please do it.
All right, guys, are we done? All right, guys, I hope we are done. So, guys, that's the weightage of the chapters. Let's now discuss nature and scope of business economics, the very first chapter, a relatively easy chapter. Just under we have 2 units. We study the nature and scope of economics. We'll study the what is positivism theory and all those stuff. What do you mean by economics, where the word has been derived from, which language it has been derived from, we'll study in the very first unit of the first chapter. Second, basic problems of an economy and role of price mechanism. We will study the various economic systems in this chapter. May I know what are the various economic systems? Anyone would like to enlighten me? For a country, what are the various economic systems? Abhishek, Neha, Ms. Jane. The economic systems. Come on, guys. No one? Abhishek, no? It's easy. The various economic. Rasika? No, 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 no. That's not economic system. No. The various economic systems are capitalist economy, socialist economy, and the third one? Mixed economy. Perfect. So, guys, how different economies solve the problem? Okay, and what is the role of price mechanism in solving the basic problems of the economy? We shall study in this chapter. Guys, very important, easy but important. And guys, when it comes to MCQ, there are only two things: either you know it or you don't know it. Theory में कैसा होता है ना, theory हमें अगर पूरा नहीं भी आता है तो हम लिख जरूर पाते हैं. But when it comes to MCQ based curriculum, it's do or die. Also, there's a negative marking in a curriculum. So, अगर हम लोग phycology concept पे अगर answers लिखेंगे, तो it can have its own issues. Nevertheless, that's chapter number 1 for us, followed by chapter number 2, theory of demand and supply. Unit 1, law of demand and elasticity. What do you mean by elasticity? Any clue? What do you mean by elasticity? Responsiveness. The flexibility that a buyer may show in buying the products to conceive its demand if there is a change in price at all. Correct, guys? That's elasticity. We'll study that. Also, what is consumer behavior, how the consumer behaves upon different circumstances, followed by the law of supply. Exactly reciprocal concept of law of demand. If you study the law of demand really well, law of supply becomes a cakewalk for you. It is just a reciprocal chapter, not exactly opposite. I'm saying reciprocal. That's chapter number 2. Chapter number 2 has got a lot of weightage. Okay, 12 to 16 marks का weightage है. इस chapter के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते. Also, जो sequence है पढ़ाई का, आपको nature and scope of business economics followed by business cycles हम लोग start कर सकते हैं. But rest of the chapters have to be studied in the same sequence: theory of demand and supply, theory of production and cost, meanings and types of market. So guys, आप sequence से भी छेड़खानी नहीं करोगे. Chapter number 2, theory of demand and supply, followed by the third chapter, theory of production and theory of cost, what it takes to produce. ठीक है, इसमें capital और entrepreneurship के concepts हैं theory of production में, and theory of cost, what are the different types of costs के बारे में डिस्कशन हुआ है. ऑल्सो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर पे, स्पेसिफिकली इस यूनिट पे. दैट चैप्टर नंबर 3, followed by chapter number 4, that is meaning and types of markets. Okay, the chapter number 4 says meanings and types of market. Again, it's a big chapter, और ये चैप्टर पूरी तरह डिपेंडेंट है पुराने चैप्टर्स पे. अगर हमने डिमांड के साथ खिलवाड़ किया तो हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस वाला जो यूनिट है वो बिगड़ जाएगा. अगर हमने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट अच्छे से नहीं पढ़ा है तो हमारा प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन ये यूनिट, ठीक है,
अंडरस्टैंडेबिलिटी में प्रॉब्लम देगा. सो गाइस चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर थर्ड अगर इसमें अंडर नॉलेज है तो चैप्टर नंबर फोर डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए. और चैप्टर नंबर फोर इज अ बिग थॉर्न फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट. अगर हम लोग 100 स्टूडेंट्स का अगर हम लोग डिस्कशन करें तो कम से कम 70% स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में प्रॉब्लम है. और ये चैप्टर में इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि चैप्टर नंबर सेकंड और चैप्टर नंबर थर्ड का नॉलेज परफेक्ट नहीं होता है. सो गाइस वी विल गिव इट्स ओन इंपॉर्टेंस to reach chapter number 4 to the previous chapters. Nevertheless, the last chapter of economics, business cycles. What do you mean by business cycles? Any clue? Mm-hmm. From production to consumption. Sorry? The cycle through production to consumption. No. I'm sorry to let you know. Business. Correct. Business cycles is about the volatility of business environment when it comes to when we had faced कोविड. जब हमने कोविड का पीरियड देखा तो मुझे बताइए क्या एक्सपांडिंग इकोनॉमी थी इंडियन इकोनॉमी? बोलो. No, it talks about Indian economy and it talks about any economy for that matter and the various phases in the business life in that economy. For example, indicators of business cycle में अगर हम लोग देखें तो various business cycles are expansion, peak, contraction, trough. So guys, it talks about the various circumstances under which the economy may face और बिजनेस पे उस इकोनॉमिक सर्कमस्टांस का क्या इंपैक्ट होगा. आपने तो सुना ही होगा द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929. हैव यू हर्ड? ठीक है. वेयर डिड इट हैपन? अमेरिका. करेक्ट. सो गाइस उसका बिजनेस पे क्या इंपैक्ट हुआ, उसका रिपल इफेक्ट क्या होता है, ये हमें समझना है. और बिजनेस साइकिल्स में हम लोग ये सारे साइकिल्स पढ़ेंगे और इंडिकेटर्स भी पढ़ेंगे. सो गाइस दैट्स दैट about business economics. Very interesting syllabus, I would say. Just don't trust me, guys. Had I been a student, I would not have studied these chapters or this subject just for marks. हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के एनालिस्ट बनना है. I want you to understand the bigger picture and not just read these subjects for paltry scoring 60, 70, 80 marks. Nevertheless, shall we move ahead? आपको ये चैप्टर्स में पावरफुल प्रेजेंटेशन से कवर करवा दूंगा जिससे आपका फोटोग्राफिक मेमोरी जनरेट हो जाए. सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉर 60 मार्क्स. देन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज फॉर 40 मार्क्स. हैज इट्स ओन लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस. और क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट्स लाइक ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट एमसीक्यू बेस्ड है. सो गाइस either you know it or you don't wala situation hai. And the scheme of the chapter says there are 6 chapters. Again, it has got its own weightage, but guys, the weightage says that basic introduction 8 to 10 marks, business environment 8 to 10 marks, business organization 6 to 8 marks, government policies for business growth 8 to 10 marks, organization facilitating business 8 to 10 marks, and business terminologies 10 to 12 marks. Would you please write this down? This will help you to plan your studies. Please write this down.
All right, guys. I hope it is done. I hope you wrote it right. So let me help you with the various chapters. Business and commercial knowledge introduction. As far as BCK introduction is concerned, we understand what is business and commercial knowledge. Why do we need to study BCK? Also, the importance of BCK for chartered accountants, and what are the various types of what are the various types of forms of business organization we study in this chapter. Also, we study the various economic and non-economic activities. Very basic chapter, but guys, this chapter is important from the perspective of shaping your career, क्योंकि BCK इंट्रोडक्शन चैप्टर में ये बताया जाता है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बिजनेस करोगे तो आपको क्या बेनिफिट है, क्या फायदे है, क्या नुकसान है. आप अगर जॉब करते हो तो व्हाट आर द न्यूएंसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट वी शैल डिस्कस इन दिस चैप्टर. और अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको कौन से बेनिफिट्स, कौन से इश्यूज आप फेस कर सकते हो, ये डिस्कशन है इस चैप्टर में. तो बीसीके इज अ वेरी वाइसली ड्राफ्टेड करिकुलम. बिल्कुल हमें ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ introduction of the subject, but for the concern of career building and career shaping. Also, do you know him by any chance? Do you know Param Pujya Pakingi Baba? Do you know him? Who is he? Yes, sir. Ramdev Baba. Okay, all right. So Ramdev, the great, the Lord, the Shri Pakingi Baba. Now listen, Patanjali Baba, Ramdev Baba is fighting, is giving a tough competition to the likes of Hindustan Unilever, the British multinational, Procter and Gamble, the American giant, Godrej, Dabur, you name it and it is fighting it. And these have been there in the business since decades now, and it has stormed into Indian industry, in the Indian FMCG sector in last 15 years, and it has made a lot of difference. What and how did it use the business environment? How Patanjali made its place in this tough hyper competitive market? This all we shall study in the second chapter, business environment. मैंने कहा है आपको हमेशा, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के एनालिस्ट बनते हैं. हमें देखना है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा कॉर्पोरेट, हमारा बिजनेस, हाउ इट कैन रियली चेंज इट्स मार्केट पोजिशनिंग considering the business environment. Trust me guys, you have to make your position in the market. You do not get a freebie entry into the market. Like Jio को मार्केट में एंट्री करने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपीस खर्च करने पड़े तब जाके जियो बनाए. इट्स नॉट अ फ्री एंट्री मार्केट. एनीवे, बिजनेस एनवायरनमेंट समझेंगे तो एनालिस्ट बन पाएंगे आगे. नेक्स्ट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ऑलराइट, सो raise your hands if you have an answer for this. Do you know this brand HP? Yes, sir. Do you know this brand? Neha, do you know this brand? Yes, sir. Raise your hands if you know the answer. Give me the full form of HP. All of us know this brand. HP. Correct. Hewlett Packard. That's the full form. It's an American company. So guys, हमारे लिए Hewlett Packard, हमारे लिए HP is a very well known brand. लेकिन हमें नहीं पता कि HP is Hewlett Packard and HP is an American company. Just like that, अगर मैं आपको पूछूं इन ब्रांड्स के बारे में तो आप बिल्कुल मुझे बता पाओगे कि नेस्ले तो यार मेरा देखा हुआ ब्रांड है. Am I right? Nestle, everyone, you must have heard, you must have read, right? Raise your hands. Nestle जैसे पतंजलि इंडियन कंपनी है, ठीक है, इंडिया इज द होम कंट्री ऑफ पतंजलि. वैसे नेस्ले का होम कंट्री कौन है? कौन बताएगा? नेहा, नेस्ले का होम कंट्री? Nestle, KitKat, Maggie, what not? You name it and we use the product. Rasika, Nestle? UK.
UK? No. Rasika? It's definitely not Indian. It's definitely not Indian. That's a very nice answer. Abhishek? No, sir, I don't know. No clue? Abhishek, 74, याद है ना? No, sir. The answer is it's a Swiss company. It's Switzerland based company. ठीक है. Apple we all know. ITC के products हम use करते हैं. So guys, we use these brands, but we do not know much about them. Welcome to the chapter Business Organization. This is where we'll study for about more than 30 companies and 10 multinational companies and around 20-22 Indian companies we shall study about in this chapter. ये chapter छोड़ के जाता है, पूरा इंडिया का स्टूडेंट इस चैप्टर को छोड़ के जाता है. I will make sure 7 lectures I'll take for this chapter and I'll make sure you go well with this chapter as well. इंटरेस्टिंग होता नहीं है, इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है. क्यूरोसिटी होती नहीं है, क्यूरोसिटी जगानी पड़ती है. आई एम नॉट अ टीचर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू flame you with fire and I want to ignite the inspiration in you, the motivation in you so that you study. So guys, Wipro पहले क्या था और Wipro आज क्या है, Wipro story भी हम समझेंगे हमारे इस चैप्टर में business organizations. Moving ahead, government policies for business growth. What do you mean by the word policies? Any clue? What do you mean by the word policies? Set of rules. Set of rules, not bad. Abhishek, policies? Okay. Rules, ठीक है. Generally correct answer. Guys, आप में से कितने लोग कभी भी सिगरेट नहीं पिएंगे? सर डिसाइड किया हमने सर, कभी भी सिगरेट नहीं पिएंगे सर. Anyone? नॉट डिसाइडेड, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया आपने? Yes, sir. है ना, डिसाइडेड है ना. आई विल नेवर स्मोक, आई विल नेवर लेट अ सिगरेट. ये मेरे पॉलिसी नहीं कहते इसको, ये मेरे प्रिंसिपल है, ये मेरे सिद्धांत है. तो पर्सनल लेवल पे होते हैं प्रिंसिपल्स, बिजनेस लेवल पे या कंट्री लेवल पे बनती है पॉलिसीज. हम इंडिया में किसी को भूखा नहीं मरने देंगे. हम इंडिया में कोई भी बंदा भूखा ना सोए, ये गवर्नमेंट की एक टाइप की पॉलिसी है. ऑलराइट, तो हम लोगों को पॉवर्टी से रिलेटेड पॉलिसी नहीं पढ़नी है. हमने बिजनेस, हमारा सब्जेक्ट इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, हमने बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड पॉलिसीज पढ़नी है. करेक्ट? सो गाइस, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ इंडिया को बहुत परेशान किया है, रादर पूरे वर्ल्ड को बहुत परेशान किया है एक टाइप के प्रोडक्ट ने. यानी आप कोई भी चीज उठा लो, जैसे मैंने ये मैंने पेंसिल उठा ली, ये मैंने पेन उठा लिया, तो देयर इज अ हाई चांस. मैंने ये रिमोट उठा लिया तो देयर इज अ हाई चांस. मैंने ये बैटरी उठा ली तो देयर इज अ हाई चांस. मैंने ये छोटा रिमोट उठा लिया, देयर इज अ हाई चांस. मैंने ये एसी का रिमोट उठा लिया, देयर इज अ हाई चांस कि ये सारे प्रोडक्ट मेड इन चाइना हो. क्या कहते हो? लेट मी चेक. या मेड इन चाइना. Yes, sir. There's a very high probability आप every second product you have will be a Chinese product, like made in China, उस पे ब्रांडिंग रहेगा. राइट? Raise your hands, tell me, गवर्नमेंट के पास, इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की मेड इन चाइना को डिफीट करने के लिए? एनी क्लू? Make in India. Correct. Make in India. That's the government policy for business growth in India. Correct? That's the government policy for business growth in India. So guys, ऐसी कौन सी पॉलिसीज इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई हैं जिससे बिजनेस की ग्रोथ होगी, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. So guys, do you think it's just a syllabus or do you think it's too interesting कि हम लोग इसको छोड़ दे यार? छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता. Not for the sake of marks, but for the sake of growing your knowledge. Nevertheless, we move ahead. Organizations facilitating business. What do you mean by the word facilitating? Helping. Correct. Helping. ऐसी कौन सी organizations है जो बिजनेस को हेल्प करती है? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है जो बिजनेस को हेल्प करती है, जो बिजनेस को बूस्ट करने में मदद करती है? इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है हमने. चलो, हम बचपन से पढ़ते आ रही है.
इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, एम आई राइट? और एक सेंटेंस हम बार बार पढ़ते हैं, कौन सा? करेक्ट, इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, राइट? तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. नाउ I would love to know, just tell me, India is an agrarian economy, right? Just make a wildest of your guesses. How many villages are there in India? Abhishek, wait on. How many villages? Any guesses? Neha? Around 6 lakhs. 6 lakhs. Rasika? 6 to 7 lakhs. Guys, in India, the number of villages are 6,49,481 as per the 2018 census. Now, my next question is, how many cities in India? Any clue? Any clue? How many cities in India? You know, when I 6.5 lakh almost villages in India. So how many cities in India? Come on. Any guess? Wildest of your guesses? 6.5 लाख villages. तो यार शहर कितने होंगे यार? कम से कम 1 लाख तो होनी चाहिए. What's your answer, Miss Jane? Half of okay, 2 to 3 lakhs. 2 to 3 lakhs. Very nice. Neha, what's your answer? 4,000-5,000, I guess. 4,000-5,000. Are you sure? 1,000. Okay. Abhishek, what's your answer? 10,000-12,000. 10,000-12,000. Guys, the number of cities in India is 4,000 only. So Neha, your answer is almost correct. Number of cities only 4,000, guys. 4,000 cities and a plethora of 6.5 lakh villages in India. मुझे बताइए, इंडिया को ग्रो करना है तो सिटी डेवलप करनी है या रूरल एरिया? टेल मी. ऑफ कोर्स रूरल एरिया. ऑफ कोर्स रूरल एरिया. गाइस, कोई ऐसी बैंक बताएंगे जो रूरल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है? Correct, absolutely correct. The answer is NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. A beautiful example of an organization which facilitates business. All right. So guys, yeah, that's again one chapter followed by the next chapter, common business terminologies. CA फाउंडेशन के बाद आप CA इंटर में जाएंगे तो आपसे कुछ चीजों की उम्मीद की जाती है कि यार इस स्टूडेंट को इतना तो आता ही होगा. यू नो, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स आपको आने ही चाहिए. डिपॉजिट स्लिप क्या होता है? आर्टिकलशिप करोगे, ये पता ही नहीं है डिपॉजिट स्लिप क्या होता है, भगा देंगे तुमको ऑफिस में से. सो गाइस, बैंकिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़नी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एनीवन बाय और सेल शेयर्स इन अ स्टॉक एक्सचेंज जस्ट लाइक दैट? या फिर आपको किसी के थ्रू जाना पड़ेगा? ये मेरा सवाल है. हम correct, you cannot directly buy or sell shares from a stock exchange. We need a broker. सर ये चीजें हमें कहां से पता चलेगी? फिनेंस, स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट टर्मिनोलॉजी, इस यूनिट से हमें ये पता चलेगी. तो बैंकिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़नी है, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हमें टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है, फॉलोड बाय मार्केटिंग से रिलेटेड हमें टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है. फॉर एग्जाम्पल, सो मार्केटिंग से रिलेटेड कौन सी टर्मिनोलॉजीज? एग्जाम्पल, हमारे डैड की फर्स्ट कार मारुति 800, हमारे डैड की सेकंड कार कौन सी? वैगनआर. हमारे डैड की थर्ड कार स्विफ्ट. हमारे डैड की फोर्थ कार सियाज. नाउ, हैविंग सीन ऑल दीज फोर कार्स, what's the common factor amidst all these four cars? Come on, tell me. Galaxy A50, tell us. Come on, tell me, jaldi, super fast. All these cars, they belong to the brand Suzuki. So ये concept क्या है? This is brand loyalty.
कहां पढ़ेंगे हम लोग? मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज में. एनीवे, गर्ल्स, which one? Tell me, choose one. Which one? Come on, make it fast. The black one? Yeah. Of course. So we as Indian customers, do we check out the material first or do we check out the price first? Price. Yes or no? We check out the price. यानी we all wish to buy the stuff without checking. हम लोग कोशिश करते हैं या फिर हम लोग अपनी लाइफ को ऐसा मूव करना चाहते हैं कि हम लोग बिना परेशान हुए, ठीक है, बिना परेशान हुए, प्राइस को बिना देखे हम लोग प्रोडक्ट्स खरीद ले. राइट? लाइक हम लोग ये चाहते हैं, कैसे? ये दे दो, वो दे दो, मैनिक्विन का वो निकाल दो, मेरा साइज है वो, ये दे दो, ये दे दो, चलो अब क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हैं. हम ये करना चाहते हैं बट हम कर नहीं पा रहे हैं. क्यों? फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेट्स नॉट डिस्कस. ये क्या है? ये कंज्यूमर बिहेवियर क्या है और इस टाइप के कंज्यूमर्स को क्या कहते हैं? अगेन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज. ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग पढ़ेंगे. गाइस, कौन सा ब्रांड है ये? व्हाट इज दिस? व्हाट इज द प्रोडक्ट? टेल मी दिस. व्हाट इज द प्रोडक्ट? कम ऑन. दिस इज मिनरल वाटर. नो अभिषेक, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज मिनरल वाटर. नाउ विच ब्रांड्स प्रोडक्ट इज दिस? This is 1 liter water bottle, right? 1 liter water bottle. 1 liter mineral water prices 20 rupees in India. Am I right? Yes. How much this 1 liter of bottle costs to us? What is the price of this bottle? बिस्लेरी का ही प्रोडक्ट है. अगर आप देखेंगे तो बिस्लेरी का ही प्रोडक्ट है. ठीक है? तो this 1 liter water bottle costs you 20 rupees, ही ना? Yes or no? 50. Guys, 1 liter water bottle cost you 100 rupees. सब बिस्लेरी का ही पानी है, सिर्फ उसको एक नाम दे दिया है वेदिका और नेचुरल माउंटेन वाटर ऐसा कुछ लिख दिया है. बॉटल सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन उसी ब्रांड का प्रोडक्ट. सर पानी में क्या डिफरेंट होएगा सर? क्या कहते हो? ये 100 रुपीज का बॉटल है, बिस्लेरी का ही 100 रुपीज का पानी है. उसमें पानी में क्या एक्स्ट्रा रहेगा मेरे दोस्त? बट एनी विच वेज गाइस, ये बॉटल आपको नॉर्मल स्टोर्स में मिलेगी भी नहीं. ये बॉटल आपको एयरपोर्ट्स में मिलेगी, ये बॉटल आपको पीवीआर में मिलेगी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, क्या कंसेप्ट है ये? दिस इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. और इसको कैसे यूज किया जाता है? ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, ये बीसीके में पढ़ते हैं. और इसको कैसे यूज करते हैं? ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. क्यों यूज करते हैं? ये इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. वेलकम टू दिस ब्यूटिफुल सिलेबस. So guys, that's all about the scheme of chapters of BCK. आपको इसका वेटेज मैंने पहले ही दे दिया है. We shall study all these things in very much detail. सारी क्लासेस फर्स्ट लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर तक सारी क्लासेस will be fulfilled with powerful presentation with lots of questions. The class will never be one way, with lots of questions. और अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे जरूर कर सकते हैं व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर. बट आप व्हाट्सएप अवॉइड ही करना क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है. लेकिन इंस्टाग्राम पे आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल. यू विल डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम. आई विल बी देयर फॉर यू इन अ मैटर ऑफ एन आवर. आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी ऑडियो से या फिर चैट से, विच एवर इज कन्वीनियंट. ऑलराइट, सो गाइस, दैट वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड लेट्स मूव ऑन अ लिटिल विद द करिकुलम. थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं. Yes guys, we shall start a little with our very first chapter. Yeah, तो मुझे थोड़ा सा आपका बेस बनाना है. डायरेक्टली हम लोग सिलेबस पे जंप नहीं कर पाएंगे. या एनीवन हु कैन टेल मी, फर्स्ट चैप्टर हम लोग बीसीके का स्टार्ट कर रहे हैं. कैन यू टेल मी व्हाट इज एन इंडस्ट्री गाइस? व्हाट इज एन इंडस्ट्री? एनी आंसर्स? Companies competing similar products.
So when I say when I say Apple, so is it an industry? Is it an industry? Come on. No. Yes. Apple is an industry, Neha? Yes. Okay. No. Apple is one of the Apple is one of the players in smartphone manufacturing industry. ठीक है? I'll help you with this. I'll give you an example. Tata, Toyota, Volkswagen, Suzuki, Hyundai, Skoda, Honda. कौन से इंडस्ट्री का पार्ट है बताएंगे मुझे? Correct. So these are the firms in automobile industry. वैसे ही Pepperfry, Jabong, Flipkart, Amazon, eBay, Myntra, Snapdeal, ये भी Shop, Home Shop 18, Shop Clues, ये सारी? Yes, anyone? E-commerce platform. Correct. E-commerce industry this is. So how do we define industry? जैसे अभिषेक ने हमें बताया, it's a group of similar firms whose products have same or similar attribute such that they compete for the same buyers. Such that they compete for the same buyers. So industry यानी कंपनी नहीं होती. इंडस्ट्री दो चार कंपनीज को मिला के, दो चार फर्म्स को मिला के, 40-50 फर्म्स को मिला के एक इंडस्ट्री बनती है. ये बहुत ही बेसिक सवाल है जो स्टूडेंट्स को पता तो रहता है, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनेशन थोड़ा दे गो हेवायर, दे गो रॉन्ग. Guys, I would love you, I would appreciate if you happen to write down this definition. This will help you. ऐसा कोई सवाल नहीं पूछेगा आपको. ये अज्यूम किया जाता है कि ये स्टूडेंट को ऑलरेडी आता होगा, लेकिन नहीं आता है, तो वी स्टार्ट अ थिंग विद द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री. जस्ट राइट इट डाउन गाइज. I just hope that you have updated it. Guys, industry is a group of similar firms whose product have same attribute. अब देखो इन सबके प्रोडक्ट में सेम एट्रीब्यूट है. देखो टाटा, टोयोटा, फोक्सवैगन, स्कोडा, होंडा, क्या बनाते हैं ये लोग? They make cars. So guys, they make automobiles. So guys, what is this? ये सारे सिमिलर फॉर्म्स है जिनके प्रोडक्ट्स हैव सेम और सिमिलर एट्रीब्यूट. दे हैव द सेम फीचर्स. एट्रीब्यूट मींस फीचर्स. और ये लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, कंपीट करते हैं. लाइक यू मे बाय होंडा सिटी. अगर होंडा सिटी नहीं तो यू मे बाय स्कोडा रैपिड. अगर आपको वो नहीं खरीदनी है तो आपके पास और ऑप्शन है, Hyundai Verna. Are you getting me? So they have the, if you do not want to buy all these things, so Suzuki has its new car Ciaz. So you know, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी. So guys, they all have their own things. They all have their own products, and this is how they become a part of what? They become a part of same industry because they are competitors to each other. All right. So guys, now humans engage themselves between work and life. काम भी करना है, and there should be life as well. We work to earn income, and we use that income for sustenance and for daily use and all. Also we try to save. We do something social activity also. But guys, हम लोग जब BC के पढ़ते हैं तो we are not dealing with anything social. Social activity का discussion हम नहीं कर सकते. We deal in everything
from the point where the product origins and the product is consumed. We deal with everything between the point of origin to the point of consumption in a syllabus. Now, एक क्वेश्चन मैं आपके जहन में डाल देता हूं फर्स्ट लेक्चर में. क्या मुझे आप बताना चाहेंगे? राजू भैया, ये क्या बेच रहे राजू भैया? What is he selling, guys? Vegetables. Vegetable. Oh, ICSC board, huh? CBSE vegetables. Sabziya. Okay. All right. So, guys, yes, he is a grocer. Raju Bhaiya is a grocer. Now, my question is he a businessman? Yes, sir. Do you agree, all of you? Yes. Yes. Now, my next question is Raju Bhaiya an entrepreneur? No, sir. Is Raju Bhaiya an entrepreneur? Yeah, come on, make it fast. No. 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 Neha, yes or no? No. He's not an entrepreneur. Okay. So, do you say that there's a difference between a businessman and an entrepreneur? Yes. Yes. Alright, guys, we shall discuss this in the coming lectures. But yeah, ये question आप दिमाग में रखिए. ये question आप जरूर दिमाग में रखिए. We'll see to this कि हम लोगों को ये concept और clarity आ जाए. ये है क्या इन दोनों में difference? Moving ahead, domain. Domain of BCK हमने पढ़ना है. What do you mean by the word domain? अच्छा, आप लोग ये क्लास इसलिए अटेंड कर रहे हो ना क्योंकि आपके पेट में दर्द है? Yes or no? No, sir. सॉरी, किडनी में दर्द है तुम्हारे, इसलिए अटेंड कर रहे हो ना कि किडनी का दर्द कम हो जाए आपके? यस नो? नहीं सर, हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है सर, इसलिए हम यहां आए. क्योंकि ज्यादा नेफ्रोलॉजिस्ट मत बनो. किडनी का दर्द आपका डोमेन नहीं है सर. ये व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डोमेन गाइस? डोमेन यानी क्या? A domain is of a particular field. A domain is a particular field of thought, activity or interest. मेरा डोमेन है इकोनॉमिक्स पढ़ाना. मेरा डोमेन है सब्जेक्ट्स, थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ाना. ये मेरा डोमेन है. आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ डॉक्टर. ठीक है, मैं बनना चाहता तो वो बात अलग है. बट या आई एम अ टीचर. मेरा डोमेन ये है, मेरा एक्सपर्टीज ये है. दैट्स अ डोमेन. नाउ व्हेन इट कम्स टू डोमेन, आपको मतलब तो पता चल गया डोमेन का. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ बीसीके? सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है बीसीके का दैट बीसीके इज वेरी वास्ट. सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है बीसीके इज वेरी वास्ट. बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज. बिजनेस के अंदर कोई भी एक्टिविटी आ सकती है जो हमने सोचा भी नहीं है. चलो मुझे बताइए. आई एम अ टीचर, दिस इज अ बिजनेस. ट्यूशन क्लास इज अ बिजनेस. एजुकेशन एकेडमी इज अ बिजनेस. और कोई बिजनेसेस आप मुझे बता सकते हो? कम ऑन. और कोई बिजनेस? सर बहुत सारे. एग्जैक्टली एक तो बताओ. डॉक्टर बिजनेस करता है. डॉक्टर बिजनेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस करते हैं. ठीक है, और सो दैट्स मेडिकल इंडस्ट्री, राइट? हाँ. एंड रसिका? Fabric industry. फैब्रिक इंडस्ट्री. ऑल राइट. Clothing. क्लोथिंग. हाँ, वेरी नाइस. दैट्स फैशन इंडस्ट्री. ठीक है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री. एंड नेहा, नथिंग टू ऐड? Industry. सॉरी, Electronic. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, राइट? गाइस, बिजनेसेस अलग अलग टाइप के होते हैं, प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं. अच्छा, हमेशा प्रोडक्ट्स ही रहेंगे, सर्विस नहीं रहेगी? ठीक है गाइस, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री पूरा सर्विस सेक्टर है. एजुकेशन इंडस्ट्री पूरा सर्विस सेक्टर है. अच्छा, बिजनेस में सिर्फ मॉल्स आएंगे? यस और नो? बिजनेस में सिर्फ मॉल्स आएंगे, स्ट्रीट वेंडर नहीं आएंगे, राइट? सर, एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज बिजनेस. इसमें सब कोई आएगा, हर कोई आएगा. यही मैं आपको बताना चाहता हूं. एक स्ट्रीट वेंडर से लेके, एक बाजार से लेके तो एक मॉल तक. ठीक है, एक छोटा सा मेडिसिन का शॉप से लेके एक बड़े एप्पल के शोरूम तक. ठीक है, हर चीज इंडस्ट्री में आएगी, हर चीज बीसीके में आएगी. बीसीके इज वास्ट. एक क्लाइंट है मेरा, ठीक है, उसका टर्नओवर अराउंड 4 से 5 करोड़ रुपए. पता है क्या बेचता है वो? कचरा बेचता है वो. ठीक है,
कबाड़ी का बिजनेस है, बट वो भी तो बिजनेस है. एवरीथिंग इज बीसीके, एवरीथिंग इज बिजनेस. सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है बीसीके का, दैट बीसीके इज वेरी मच वास्ट. ठीक है. नेक्स्ट, बीसीके इज एक्लेक्टिक. एक्लेक्टिक यानी मल्टी डिसिप्लिनरी. एक्लेक्टिक यानी मल्टी डिसिप्लिनरी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग सोचते हैं कि जब हम कॉमर्स पढ़ते हैं तो हमेशा कॉमर्स ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे कंसेप्ट्स कॉमर्स से ही आएंगे. कई ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हर फील्ड इंपॉर्टेंट है. जैसे ये वर्ड है स्ट्रैटेजी. हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड स्ट्रैटेजी? डिड यू? तो स्ट्रैटेजी इस वर्ड का ओरिजिन कहां से आया है? ये कॉमर्शियल वर्ड है ही नहीं. स्ट्रैटेजी इज नॉट अ कमर्शियल वर्ड एट ऑल. ये वर्ड आया कहां से है, बताएंगे मुझे? मिलिट्री. करेक्ट. स्ट्रैटेजी, ये जो वर्ड आया है, दिस हैज कम फ्रॉम द मिलिट्री. इसका ओरिजिन मिलिट्री में है. समथिंग टू डू विद द वॉर एंड द वे टू विन ओवर द एनिमी, यहां से आया है वर्ड. अब एक स्ट्रैटेजी का एग्जांपल दे देता हूं. सो गाइस एक मिनट, मैं ये बताना चाहता हूं, सर बिजनेस में मिलिट्री के वर्ड्स यूज हो रहे हैं? जी हां, बिजनेस में वर्ड यूज हो रहे हैं मिलिट्री के. स्ट्रैटेजी, ये जो वर्ड है इसका ओरिजिन आया है मिलिट्री से. Just as armies at war develop strategies to outsmart each other, likewise business draw their strategy to beat their competitors. So guys, क्या है ओरिजिन? मिलिट्री ओरिजिन है. अब मुझे बताइए, हम बिना ये पढ़े एग्जाम में एमसीक्यू कैसे सॉल्व करेंगे? इज इट पॉसिबल गाइस? बोलो. जब तक कि हमने ये स्ट्रैटेजी वर्ड हमें पता भी है, लेकिन इसका ओरिजिन मिलिट्री है, ये हमें पढ़ना ही पड़ेगा. यू विल हैव टू गो थ्रू दिस स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू नो दिस. So guys, that is why BCK is important from the direct perspective of scoring good marks. Anyway, strategy का एक example दे देता हूं. How many of you brush twice a day? Personal सवाल पूछ लिया, personal सवाल. रसिका, you do? अभिषेक? No sir. Once a day. Boys वगैरह साफ सफाई में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते. Am I right boys? The boys, है ना? नेहा, what about you? All right. So guys, एक मिनट. अब मुझे बताओ अभिषेक, would you mind if you happen to show us our teeth? Would you mind? अभिषेक जल्दी. अभिषेक, make it fast. Yes sir. Wait. Yeah. Such a sweet boy he is. Very nice. Now all the students in the class tell us, अभिषेक के दांत खराब है अच्छे? Rasika, what about his teeth? Tell us. They're good. Dr. Neha, tell us. They are good. They are good, right? एक मिनट सुनो ना. 2 बार ब्रश करने वाले लोग हैं, 1 बार ब्रश करने वाले लोग हैं. अभिषेक के दांत हमने देखे अच्छे हैं, ठीक है. कौन बोला है हमको 2 बार ब्रश करने के लिए? कौन बोला है हमको 2 बार ब्रश करने के लिए? बताओ. Personal choice. Now, ठीक है. Listen to me very carefully, guys. Lays, भूख लगी होगी आपको देखते ही, am I right? अगर मैं आपको 1 पैकेट दूं तो खत्म हो जाएगा? 1 पैकेट दूं तो खत्म हो जाएगा? Yes sir. 2 पैकेट दूं तो भी खत्म हो जाएगा? Yes, sir. 3 पैकेट दूं तो भी खत्म हो जाएगा? Yes sir. हाँ सर, हो जाएगा, कोई रोक नहीं है इसमें, राइट? या फिर किटकैट, अगर मैं आपको 1 दूं, 1 फिंगर दूं तो भी खत्म हो जाएगा, 2 दूं तो भी खत्म हो जाएगा. एम आई राइट? हम डिसाइड करते हैं कि अब नहीं खाएंगे, बट फिर भी खा लेते हैं 5 मिनट बाद. करेक्ट? ये ऐसी चीज है जिनको बार बार दिखा के हम लोग प्रोडक्ट ज्यादा बेच सकते हैं. लेकिन टूथपेस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कोई खाता नहीं है. एम आई राइट? टूथपेस्ट खाते हो क्या तुम? मजा ही आ गया, आज टूथपेस्ट खा लिया, फूड गैसम हो रहा है इसमें. तो ऐसा होता है क्या? ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कंजम्पशन ही कांस्टेंट है. एक बार ब्रश करते थे लोग, खत्म हो जाती थी बात. तो ऐसी प्रोडक्ट का सेल कैसे इंक्रीज करे जिसका कंजम्पशन ही कांस्टेंट है? गाइस, कोलगेट ने पहले 20 साल एड चलाया कि कोलगेट रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग टीथ और दुनिया का सबसे विश्वसनीय ब्रांड कोलगेट, ऐसा बताया. और फिर धीरे से अपने डेंटिस्ट की टीम लॉन्च कर दी ये बताने के लिए कि दुनिया का सबसे विश्वसनीय ब्रांड कोलगेट.
दुनिया के डेंटिस्ट का सुझाया हुआ नंबर 1 ब्रांड कोलगेट आपको यह सलाह देता है कि आप दिन में 2 बार ब्रश करें। ये एड कैंपेन चलाने के बाद नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल हु ब्रश ट्वाइस अ डे इंक्रीज बाय 45%, देयर बाय कंजम्पशन भी बढ़ा। प्रोडक्ट को चेंज किए बगैर प्रोडक्ट का यूजेज बढ़ा दिया। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्ट्रैटेजी। सो गाइस, दिस इज हाउ द वर्ल्ड। हम लोग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोग एज अ कंपनी सेक्रेटरी, हम लोग एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, हम लोग कोई प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं कर सकते। हम लोग कोई प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं कर सकते। ऑल वी कैन डू इज गिव गुड मैनेजमेंट टैक्टिक्स एंड इंक्रीज द सेल, दैट्स ऑल। सो गाइस, डोमेन ऑफ बीसीके में पहला वर्ड कौन सा वर्ड? BCK is Vast. vast. Second BCK is eclectic. Eclectic. So this is where BCK is eclectic, multidiscipline. भाई मिलिट्री से हम लोग ये वर्ड लेके आए हैं। किसी भी डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट BCK में यूज हो सकता है। स्ट्रैटेजी का ओरिजिन कहां से है बताएंगे? मिलिट्री, करेक्ट। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। हैव यू हर्ड अबाउट दीज वर्ड्स? Yes. बुल्स एंड बेयर्स, ये वर्ड्स किससे रिलेटेड है? Stock market. स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वर्ड्स है। स्टॉक मार्केट, राइट? स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग कहते हैं बुल, इसका मतलब स्टॉक मार्केट में शेयर के प्राइसेस क्या हो रहे हैं? बोलो। High. बढ़ रहे हैं, करेक्ट, बढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। और अगर शेयर के प्राइसेस कम हो रहे हैं, क्या? बेरिश बिहेवियर। दिस इज बेरिश बिहेवियर, करेक्ट। तो ये वर्ड बुल्स और बेयर्स कहां से आए हैं? सो गाइस ये बायोलॉजी से आया है। सब बायोलॉजी कहां से आ गया कॉमर्स में? बताता। अगर आपने कभी बुल फाइट देखी होगी, ठीक है, अगर आपने ये ऐसा कभी देखा होगा, तो जस्ट गाइस चेक इट आउट कि बुल कैसे मारता है अपने अपोनेंट को। जस्ट चेक दिस आउट। कैसे मार रहा है? व्हाट इज हिज मोड ऑफ अटैक? The horns. ऊपर की तरफ। करेक्ट। अपने कंपटीटर, अरे मैं तो ध्यान दो, वहां क्या देख रहे हो? अपने कंपटीटर को उछाल उछाल के फेंक रहा है वो, राइट? हिज बिहेवियर, हिज साइकोलॉजी इज बीइंग डिस्कस्ड हियर गाइस। जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो बुल की साइकोलॉजी के बेसिस पे उसको बुल नाम दिया गया है। सो गाइस, सेकेंड वर्ड बुल्स, ये जो वर्ड है बुल्स कहां से आया है? बायोलॉजी से, एनिमल साइकोलॉजी। बिकॉज बुल्स throw up their enemy in the combat in a fight. Likewise, they imply that stock market players who raise the stock prices throughout building a buy pressure. Being bullish implies optimistic expectation that the economy, market or business is likely to do well. So guys, bull में क्या होता है? स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाना अच्छा है या बुरा है? बोलो। स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाना अच्छा है या बुरा है? जल्दी बोलो। अच्छा. अच्छा है सर। Guys, that is why the word used is optimistic. Optimistic यानी क्या? Positive. On similar lines, the other animal, bear. Bear is a very sluggish animal, right? Have you heard about bear being sluggish? Like bear sleeps for 3-4 months. Hibernation, this word you must have heard, right? Yes sir. Yes. So guys, it is a very lazy animal. अगर हमारा animal spirit देखे almost all humans का, तो bear ही होगा. Am I right? Yes. No, not hopefully. Anyway, so guys, हमारा spirit animal bear होता है because we are lazy. We also are lazy. Bears are ultra pro max lazy. Okay, और वो किसी को उठाते नहीं, उठाने में मेहनत लगती है, तो वो ऐसा अपने कॉम्बैट में अपने कंपिटिटर को ऊपर से नीचे ले आते हैं. So guys, because they have the habit of pulling things down, guys, the word bears, ये भी वर्ड आया है बायोलॉजी से, ये भी वर्ड आया है बायोलॉजी से, एनिमल साइकोलॉजी से. Bears have the tendency to embrace and push downwards enemies in the combat. To embrace and push downwards. Thus bear in the stock market player. Bear में क्या होगा? सर सारे स्टॉक प्राइसेस जब नीचे जाएंगे तो इसको कहेंगे बेरिश. तो यार ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बोलो. बेरिश पॉजिटिव या नेगेटिव है? ओह दैट्स नॉट गुड. दैट्स व्हाई जब बेरिश मार्केट होता है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन नेगेटिव होती है, पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है. So there's one last word left, that is logistics. Then we call it a day. ठीक है, ये logistics word जो आया है, ये क्या concept है और ये कहां से आया है? चलो guys, थोड़ा मुझे help करिए आप. ठीक है,
Just help me with this. No, 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 no. I want to be there in the frame. तो कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, कहां जाएगा ये ऑर्डर? कम ऑन टेल मी, कहां जाएगा ये ऑर्डर? हमारे टीम के सेल्स डिपार्टमेंट के पास. किसके पास? सेल्स डिपार्टमेंट. सेल्स डिपार्टमेंट ये ऑर्डर फॉरवर्ड करेगा किसे? कम ऑन. Production. Perfect. Production. Beautiful, beautiful. Production department. Purchase. No, Purchase or no. stock. Stock. Correct, correct, correct. Stock. Abhishek Virada answers, boy. Production department. Stock को कौन सा डिपार्टमेंट कहते हैं? बोलो. Come on, get your knowledge. Correct. Inventory. इन्वेंटरी में ओके. सेल्स हमें 2000 यूनिट का है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताया जाएगा कि भाई 2000 यूनिट का प्रोडक्शन है, रेडी रहियो. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास हो सकता है, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स रेडी हो, फिनिश गुड्स रेडी हो. इन्वेंट्री में चेक होगा, अरे 1000 यूनिट्स रेडी है, 1000 बनाने हैं, ठीक है. तो गाइस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1000 बनाएगा, लेकिन उसके लिए फिर से रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल चेक होगा. अरे लेकिन रॉ मटेरियल 500 ही यूनिट्स का है, तो फिर इन्वेंट्री किसको बताएगा? इन्वेंट्री डिपार्टमेंट किसको बताएगा? Purchase. करेक्ट, परचेज डिपार्टमेंट को. एंड देन परचेज डिपार्टमेंट किसको ऑर्डर देगा रॉ मटेरियल के लिए? Supplier. करेक्ट, सप्लायर को. सप्लायर रॉ मटेरियल भेजेगा कैसे? Logistics. करेक्ट, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कहते हैं इसको. क्या कहते हैं? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. और ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल दे दिया, इन्वेंट्री में आ गए, इन्वेंट्री से प्रोडक्शन वाले ले लेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, रॉ मटेरियल 2000 यूनिट्स रेडी हो गए, सेल्स डिपार्टमेंट को दे देंगे और वो डिस्पैच कर देंगे कस्टमर को. कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा? बोलो, गेस करो. Outbound. Absolutely correct. Outbound logistic. Connecting everything right from the point of origin to the point of consumption is called as supply chain management. Supply chain management के बारे में आप पढ़ोगे CA इंटर और CA फाइनल में. हाल फिलहाल मैंने आपको समझाना था लॉजिस्टिक्स. लॉजिस्टिक्स यू कैन से फाउंडेशन लेवल पे लॉजिस्टिक्स का मतलब, लॉजिस्टिक्स का इजी मतलब है ट्रांसपोर्टेशन. फाउंडेशन लेवल पे, या ठीक है. ये वर्ड भी कहां से आया है? ये वर्ड भी मिलिट्री ओरिजिन से आया है. ये वर्ड भी मिलिट्री ओरिजिन से आया है. सो गाइस, इन मिलिट्री logistic means movement of troops, military supplies and equipment. In business, it implies the detailed coordination of complex operation involving many people, facilities or supplies. So guys, वैसे आपके डायरेक्टली आज काम का नहीं है ये डायग्राम, but this is a beautiful diagram for supply chain management. Okay, this is a beautiful diagram for supply chain management. Had I been in your shoes, I would have certainly drawn this diagram. Please draw this. So guys, that is all about supply chain management. SCM आपको डायरेक्टली आज काम नहीं आएगा, लेकिन इन कमिंग चैप्टर्स हमें इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा, तब हमारे लिए कंसेप्ट रेडी हो जाएगा. So guys, we have seen two things. BCK is vast, BCK is eclectic, and नए नए बिजनेस रोज आ रहे हैं यार. क्या कहते हो? नए नए बिजनेस रोज आ रहे हैं. लाइक who would have thought कि 2000 इन द ईयर 2000 क्या हमने सोचा था कि खाना डिलीवर होगा घर पर हमारे? स्विगी आ गया, जोमैटो आ गया, बायर एग्रीगेटर कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, नए नए चीजें, चिप्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गए. ये सब 50 साल पहले कोई मार्केट ही नहीं था इन लोगों का. द थर्ड डोमेन ऑफ बीसीके इज
BCK is ever evolving and expanding. ठीक है, 24/7 ऐसा कोई वर्ड ही नहीं था 50 साल पहले ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में, but 24/7 is such an important word nowadays. Like CA students study 24/7. What say guys? बोलो, tell me. 24/7, 24 hours a day, 7 days a week. B2B, business to business. B2C, business to customer. BPO, what is the full form of BPO? Come on. Business process. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. चिप्स, हम लोगों को देखिए 10th स्टैंडर्ड में अगर मैं आपको पूछता चिप्स ने क्या, तो हमको यही नजर आता, बट गाइस चिप्स का मीनिंग ही बदल चुका है आज. दीज आर द चिप्स नाउअडेज, राइट गाइस. नो वंडर कुछ दिनों बाद हम सबकी बॉडी में ऐसे छोटे छोटे चिप्स आ जाएंगे. ठीक है, हमको कोई पेमेंट के लिए QR कोड स्कैन करने की या फिर हमें कोई कार्ड स्वाइप फेंक दिया मैंने वो कार्ड स्वाइप करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट दिस चिप विल बी इम्प्लांटेड इन योर हैंड एंड यू कैन जस्ट टच इट एंड द पेमेंट विल बी डन. ठीक है, या ये चिप कहीं भी, यानी कहीं यहां डाल देंगे या फिर हाथ में डाल देंगे, कहीं भी, यू नेवर नो. सो गाइस, द वर्ल्ड इज चेंजिंग. BCK is ever evolving and ever expanding. So guys, that's that from the perspective of BCK and today's lecture. I hope you had a good time. I hope you studied something new. Did you? Could you? Yes, sir. All right. Yes. All right. I hope it was worth your time and I hope it was worth your effort, and I hope we score super good and we go on with a lot of confidence in the exam. Again, okay, चारों subjects important है. Our team will make sure that you do well in the coming exams. Okay, me, Abhijit sir, Rahul sir, Aman sir, and Apurva ma'am, she is the mainstay for test series at VSmart. We will make sure that you do really good in your exams. Maths, accounts, critical subject है, law critical subject है. Of course, इसमें हमें expert knowledge चाहिए होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस ये है कि हमने मार्कशीट में एग्रीगेट का इश्यू सॉल्व करना है. एंड ऑल्सो ऐसी भी मार्कशीट देखी है मैंने जिसमें 70, 70, 75, 80 मार्क्स है, लेकिन हाल फिलहाल क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एक बार एग्जाम देख लिया है. सो गाइस, आपको ऑलरेडी पता है व्हाट ऑल यू हैव टू डू. आई एम जस्ट हियर टू इग्नाइट दैट मोटिवेटिंग फैक्टर इन यू. सो गाइस, दिस इज पवन गौकर साइनिंग ऑफ. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यूज है, तो यू कैन सर्टनली लेट मी नो. इंस्टा पवन पे रोज रात 10 बजे क्विज होता है. वॉट एवर वी स्टडी इन द क्लास, इस पे क्विज होता है. Even if you are not a CA student, that should help you a lot. This is what I feel. Any which ways, thank you so much. This is Pawan Gauka signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye-bye, guys. Thank you, sir. Thank you so much. Bye-bye, guys. Take care.